Good evening, ma'am. Good evening. So, good evening, everyone, and thank you, ma'am, for the introduction. Am I audible? I hope my voice is clear and I am audible to everyone. Ma'am, yeah, ma'am, you are audible, but please speak a little louder. The voice is coming low. That's all the issue. Okay, okay. I will speak louder. So, am I audible now? Yes, ma'am, it's better. Okay. So, before starting anything, I want to know all of you who have joined, all of you, whether all of you are students of hospital administration or you want to join for hospital administration course, whether it is a bachelor or a master's course. Just a brief introduction, if you can give, all of you are students or all of you are, do you want to pursue this course? Okay, so it becomes better for us to make you understand what is the scope and challenges of hospital administration. As all of us belongs to the same fraternity, it becomes very easier. First of all, when we want to know about what is the scope and challenges of hospital administration, we should know what actually is our hospital. So, giving a brief introduction of hospital, all of you have joined a course of hospital administration. You have to work through years in future in hospital. So you have to know what is hospital. So a hospital is a healthcare institution providing patient care treatment with specialized health science and auxiliary healthcare staff and medical equipment. So what as a when we think of a hospital, we think that everybody has gone to a hospital just to take any treatment or with to give treatment to some person, isn't it? But hospital, now we have to go to hospital to take care of people, to give care of other people, and we being an administrators, we have the job of giving care to each and every person with the with taking all the people with us. So provides patient treatment with specialized health science. We have treatment is given by the jhola chhap doctors, even the other fraternities, they give treatment, but in a hospital the treatment is given in a specialized way. So to give any services in a specialized way, we need specialized people also. We want to give treatment in a specialized way, not only in a specialized way but in a scientific manner also. Scientific manner in the sense कि हम कोई झाड़ फूक करके कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाले, या हम कोई पूजा पाठ करके नहीं ट्रीटमेंट करने वाले. वी आर गिविंग अस वी हैव अ scientific basis in a hospital to give the treatment. And another definition of hospital says that a hospital is an institution providing medical, surgical, or psychiatric testing and treatment for people who are ill, injured. So, people who are coming to hospital, they get not only medical treatment, surgeries are also performed. So, you can get treatment in OPDs, in clinics, in nursing homes, but especially for hospitals, we are giving surgical treatments also. We are giving testing, diagnosis are also done, investigations is also done. Injured people come to the hospital, and we give treatment to for good news also. It is not that hospital people come with their agony, with their pains, when they are sad. It is not there. People come to the hospital for some good news also. So, like we do ectopic pregnancies, we do elective pregnancies, we do like in knee replacement. People come with pain, with lot of pain in their knees, but they go happily after their knee replacement.
and even after pregnancies, they go happily after visiting to the hospital. So on an inpatient, outpatient or emergency care basis, without hospital, nobody can get emergency care basis. So we take care of emergencies also. So hospital is involved in with public health programs also. It is not only giving treatment to the patients, but it is involved in public health programs. Public health programs means, like we can see what happened in dengue. We organize blood donation camps. We organize food for all camps. So these are public health programs. We do vaccination programs. We do surgical cataract eye surgeries together for communities. Such a programs are done very frequently in a hospital, and plus along with that, the research program is also done in hospital. Then we give medical education also, not only not only in your hospital or the education institution in which you are studying, we give medical programs, but in a hospital which is not associated with the in any medical institute, even then they do combined medical education program for doctors. So a hospital might be having a good infrastructure, wonderful healthcare team, professional people. You can have a very good doctors, you can have very good infrastructure, very good healthcare team. But managing a hospital is a must in order to obtain maximum patient satisfaction. Now what is happening, we can have good doctors in a hospital. बहुत अच्छे doctors हैं हमारे पास, बहुत अच्छा सुंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होटल की तरह. But if we are not able to manage that hospital, if we are not able to manage the staff, if we are not able to manage the doctors in the hospital, then what is the use of getting that infrastructure and recruiting all the doctors? So our job being a hospital administrator is to manage all the things in a hospital. What is the objective to manage that hospital? In order to obtain maximum patient satisfaction. Why the patient will come to the hospital? Obviously to get the satisfaction. Patient has to be satisfied. Our first motive being a hospital administrator should be patient satisfaction. Patient satisfied होगा तो हमारे पास आएगा, तो हमारा हॉस्पिटल में आएगा. If patient is not satisfied, we will not get results, and if we are not getting result, our hospital will not run. If hospital will not run, what is the use of being a hospital administrator, isn't it? In the next slide, you can see, ma'am, you can change the slide. So in the next slide, we can see that here the doctor is running. All of you are, I think all of you are able to understand what I want to say actually. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रही हूं मैं? Yes, ma'am. So is English good for you or should I speak in Hindi? Yeah, I'm speaking Hindi, ma'am. हिंदी. ओके. तो हमारा ये रोल है बीइंग अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर. हमारा ये काम है कि हमें सब कुछ मैनेज करना है. वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग. लाइक एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, डॉक्टर हमने बहुत अच्छा रिक्रूट कर लिया, एम्स से रिक्रूट कर लिया, पीजीआई चंडीगढ़ से ले लिया, बाहर से भी ले आए, अब्रॉड से ले आए. डॉक्टर्स इधर से उधर भाग रहा है. बहुत अच्छा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बना दिया हमने, मेदांता से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया. नेक्स्ट प्लीज. सो अगर हमने सब कुछ कर दिया लेकिन हमारे पास उसको मैनेज करने की टीम नहीं है, तो इट इज एज गुड एज नथिंग. वो हॉस्पिटल रन ही नहीं कर सकता जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे नहीं हैं. Globally speaking, healthcare administrators have already played a vital part in patient quality service. जब हम globally बात करते हैं, internationally बात करते हैं, हम देखते हैं कि hospital administrators का बहुत बड़ा रोल है. और बहुत बड़ा रोल एक हॉस्पिटल के लिए रोल ही नहीं, एक चैलेंजिंग रोल है.
वेरी चैलेंजिंग रोल। और एक ब्रांड बनाने के लिए, क्वालिटी सर्विस देने के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। In India, the past 2 decades have visibly seen the dawn of a new morning for healthcare providers. इंडिया में हम पिछले सालों से देख रहे हैं, कम से कम 20 सालों से हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एक बड़ा रोल प्ले किया है सब हॉस्पिटल्स में। जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने जब एनरोल किया होगा इस कोर्स में, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी MHA BHA के बारे में सुना ही नहीं होगा, लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि ये कितना अपकमिंग कोर्स हो गया है, आप लोगों को पता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या रोल है। अब जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि सारे के सारे जितने भी PROs हैं, जितने स्टाफ्स हैं, जितने मैनेजर्स हैं, they have to have the MHA degree or BHA degree with them, otherwise they will not recruit. We have seen पहले क्या होता था, जब हॉस्पिटल्स बनाए गए थे तो हॉस्पिटल्स एज अ सर्विस प्रोवाइडर, पुराने जमाने में इफ वी गो टू 1800 सेंचुरी और 1900 सेंचुरी, हॉस्पिटल असाइलम्स की तरह बनाए गए थे। रोगियों को लेकर आया जाता था वहां पर और मतलब पटक दिया जाता था। अगर कोई केयर कर रहा है तो कर रहा है, बट नाउ-ए-डेज द सिनेरियो हैज टोटली चेंज। अब सब कुछ चेंज हो गया। पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मुझे बहुत पैम्पर किया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से रखा जा रहा है, मुझे सेटिस्फाइड हुआ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको अगर पेन हो रहा है, उसको स्टमक एक हो रहा है, उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रहा है, उसको कोई सर्जरी करानी है, सर्जरी करा के वो चला गया। नाउ यू कैन सी, यू नो वेरी वेल कि इतने सारे हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो 5 स्टार होटल्स की तरह लगते हैं। अब हमारा काम क्या आता है, हम बीइंग अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये नहीं कि हम हॉस्पिटल को 5 स्टार होटल की तरह बना दें, इतनी केयर कर दें। बीइंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हमारा जॉब होता है कि जिसने हमें रिक्रूट किया, जिस हॉस्पिटल में ने हमें रिक्रूट किया, या हमने अगर कोई हॉस्पिटल बनाया, वी हैव टू अर्न फ्रॉम इट ऑल्सो, इजंट इट? इफ वी आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल लॉस, हमने पेशेंट को सेटिस्फाई भी कर दिया, हमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया, but we are not able to earn through it, then what is the use, isn't it? तो क्या होगा, as a hospital administrator you won't survive. So to survive we have to manage all the things. So in last 2 decades हमने क्या देखा कि health care faculties and administration का एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का एक मेल जोल हो गया, एमालगमेशन हो गया, उस दोनों आपस में मिल गए। कि पहले क्या होता था, MBBS डॉक्टर्स जो MD करते थे उन्हीं को मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया जाता था। तो ये चैलेंज फेस किया गया, जो डॉक्टर्स हैं उनको सिर्फ मेडिकल की नॉलेज है लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं है। उनको ये पता है कि ये बीमारी है तो हमें दवाई क्या देना है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि अगर स्टाफ कम है तो कैसे करना है। आज हमारे पास क्या चैलेंजेस है कि नर्सेज छोड़ के चली जाती हैं, साफ सफाई नहीं रखी जा रही, इन्फेक्शन हो रहा है हॉस्पिटल्स में। अगर कोई ऑल ऑफ ए सडन चैलेंज आ गया कि हमारे पेंडेमिक आ गया हमारे इंडिया में या हमारे स्टेट में, तो उसको कैसे मैनेज करना है। अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स में कमी आई, कॉस्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसको कैसे फेस करना है। तो हु इज गोइंग टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? ये MBBS डॉक्टर के बस की बात नहीं। तो धीरे धीरे ये सामने आई बात कि मेडिकल फैसिलिटीज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दे कैन मैनेज टू ट्रीट द पेशेंट, बट दे कैन नॉट मैनेज हाउ टू रन अ हॉस्पिटल। तो टू रन अ हॉस्पिटल, द रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत इसलिए पड़ी हमें। पहले 20 साल पहले हम ये सोच ही नहीं सकते थे ये बात कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की हॉस्पिटल में क्या जरूरत है। नेक्स्ट मैम। सो हमने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोविड में देखा। कोविड में क्या हुआ था, डॉक्टर्स एंड नर्सेज वेर बिजी हैंडलिंग पेशेंट्स। डॉक्टर्स और नर्सेज जो है वो पेशेंट्स को हैंडल करने में बिजी थे। ऑब्वियसली अगर डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर होता तो उसकी तो जरूरत है ना हमें पेशेंट्स को ट्रीट करने के, वो तो वैसे ही कम हो रहे थे, नर्सेज भी कम हो रहे थे। लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट इन मेनी हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा था कि हमें सबको यहाँ याद होगा, क्योंकि ये 4-5 साल पहले की ही बात है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एयरपोर्ट्स पर पड़े हुए थे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए थे, बट पीपल वेर नॉट देयर टू ऑपरेट इट। लोग ही नहीं थे, उनको खोलने वाला कोई नहीं था, उनको एयरपोर्ट से लाने वाले कोई नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सो दिस वाज ऑल
केओस मच गया था हॉस्पिटल्स में कि क्या, एंड दे वर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बट अगर वहां पर हॉस्पिटल में अच्छे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे तो वी कुड हैव फेस दिस चैलेंज, बिकॉज वी नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। हमारा मोटिव क्या है? आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट यू डोंट लुक एट द प्रॉब्लम्स, यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, बिकॉज यू हमें प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखना है कितनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करने वाले हैं हॉस्पिटल में, हमें तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो अगर हम होते उस हॉस्पिटल में, अगर वी एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स वी वुड हैव बीन देयर, वी कुड हैव मैनेज कि ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई यहाँ पर भी। हमारे पास है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज if we are not able to manage it, isn't it? Then lot of patients died because of inefficiency of time management. Time management बहुत important है हमारे लिए being hospital administrators, क्योंकि हमारे लिए एक एक सेकेंड लाइफ है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है। जहां पर हम काम करने वाले, हम कोई फैक्ट्री में काम नहीं करने वाले कि आज 100 कोका कोला की बॉटल्स कम बन गई कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 कम बन गई कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसी जगह काम नहीं कर रहे, हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे लाइफ और डेथ मैटर करती है, एक एक सेकंड मैटर करता है, एक एक सेकंड में लाइफ जा सकती है किसी का। सो फॉर अस टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये कितने सारे हमने देखा कोविड में कि कितने सारे पेशेंट्स सिर्फ टाइम मैनेज नहीं हो पाया इसलिए उनकी डेथ हो गई। सो एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हम ये काम संभाल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो रिक्रूटमेंट है, हमारी जो डिमांड है, इट हैज इंक्रीज्ड स्पेशली आफ्टर कोविड। एंड कम्युनिकेशन विद पीपल, कम्युनिकेशन विद पीपल। अब जैसे आपने सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है, 3 इडियट्स देखी है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वैसे भी देखा है आपने, आप जब कभी किसी भी क्लिनिक में गए होंगे तो यू मस्ट हैव सीन डॉक्टर्स दे डोंट टॉक टू मच टू द पेशेंट्स। वो ज्यादा बात नहीं करते, सिर्फ मरीज के रोग के बारे में बात करेंगे और उनको दवाई देके बस अलविदा कर देंगे। सो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल यहाँ पे बहुत वाइटल हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर सपोज किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद दैट पेशेंट इज इन एगनी, वो बहुत परेशान है, लेकिन हमें उससे पेमेंट भी लेनी है। ऑब्वियसली अगर हम पेमेंट नहीं लेंगे, अभी यू मस्ट बी फीलिंग इट इज सो रॉन्ग, बट इफ वी आर नॉट टेकिंग एनी पेमेंट, how can the hospital run? So it is the role of hospital administrator to communicate with the people. उसको क्या प्रॉब्लम है? People means it doesn't mean here the not only the patient but to the staff. Staff को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो किससे बात करेगा? डॉक्टर्स थोड़ी सुनेगा उसकी। स्टाफ को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इट इज द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर भी हमारा जॉब इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। So role played by hospital administrator is, some of the role played by healthcare administrators are direct, हम directly भी involve होते हैं as hospital administrator। hospital के हर काम में staff recruit करने के हो, कुछ भी कोई भी काम हो, चाहे health facilities हो, हमें किसी की duties टाइम टेबल बनाना, हर चीज में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओवरसी भी कर सकते हैं उसको, कोई चीज, बहुत सारी चीजें हमें नजरअंदाज करनी पड़ेगी बीइंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड टू एक्सेस वर्क एक्सरसाइज ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग, स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट एंड अदर स्टाफ। सो ऑल दिस थिंग्स, चाहे वो क्लिनिकल चीज बातें हो, क्लिनिकल मीन्स जो ओपीडीज होती हैं, आईपीडीज होती हैं हमारी, वो क्लिनिकल चीजें, हमारे सर्जरीज होती हैं, नर्सिंग केयर है, या स्पेशलाइज्ड कोई चीज हम हॉस्पिटल में दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल का, सपोर्ट सिस्टम में सारा कुछ आ जाएगा आपका। लॉन्ड्री सर्विसेज आ जाएगी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आ जाएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन आएगा, देन ऑल अदर स्टाफिंग, सारे जो स्टाफ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। And then we have to plan, execute and regulate projects and administration. So हमें प्लान करना है, आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि हमें प्लानिंग के हिसाब से चलना है कि हम क्या प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेटिंग, ये सारा आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। तो हमें प्लान करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट भी करना है, एंड देन वी हैव टू रेगुलेट द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। वी हैव टू प्रिपेयर एंड कोऑर्डिनेट of clinical nursing and actually planned staff.
अगर स्टाफ की कमी हो रही है तो वो प्लान करने का काम भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स का है. सो यू कैन वेरी वेल सी इतना सारा जो हॉस्पिटल की सारी जो देख रेख है, चाहे वो प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन से लेकर रेगुलेशन से लेकर कोऑर्डिनेशन से लेकर प्रिपरेशन से लेकर एंड प्लांटिंग द स्टाफ, सारा कुछ काम जो है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का हो जाता है. आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Okay. So next, please. So lay out work timetables and tasks for staff as per responsibility. हमें हमारा काम क्या है? टाइम टेबल बनाने का भी, कि कौन कहाँ पर किसकी ड्यूटी कैसे लगेगी, कितने बजे लगेगी, कितनी लगेगी, ये सब भी हमारा काम है. स्पेस एंड गियर एक्सेसिबिलिटी, एंड हमारा एक्सेस सब जगह है, कहाँ कहाँ कौन जा सकता है, दैट इज ऑल्सो आवर रोल. Accesses offices and prescribes building or gear changes to guarantee crisis status. कोई भी क्राइसिस होती है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट काम नहीं करता या स्टाफ की कोई कमी आ जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, दैट इज ऑल आवर जॉब बीइंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर. सब कुछ हमें संभालना है. एंड देन स्टेटस कंसिस्टेंस टू एक्सेस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इश्यूज भी. किसी का आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में ऑर्गन्स चोरी हो जाते हैं, किडनी चोरी हो जाती है, किसी के वैल्यूएबल्स चोरी हो गए, बच्चे चोरी हो गए. सो इट इज आवर जॉब कि सिक्योरिटी भी सही तरह से रहे. देन इन डिसइंफेक्शन गाइडलाइंस ऑल्सो, कि हॉस्पिटल में ये नहीं कि एक पेशेंट आ रहा है एक रोग लेके और वो जब जा रहा है तो 2 रोग और लेकर चले जाए. इसको हम कहते हैं नोसोकोमिकल इन्फेक्शन. सो वी हैव टू टेक केयर कि सिर्फ पेशेंट ही नहीं, पेशेंट के साथ भी अगर कोई आ रहा है, ही शुड ऑल्सो बी सेफ. He should not carry any infection from the hospital, or even we have to make such a conducive environment in the hospital. ऐसा environment होना चाहिए कि even the doctors, the nurses, the staff, they are safe in the hospital. उनको कोई infection नहीं हो जाए. जैसे हमने कोविड में देखा कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे थे वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को इन्फेक्ट कर रहे थे. So we have to follow those also. Next, please. So key knowledge areas are what. अब हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो हमें कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए. तो हमें नॉलेज किस किस चीज की होनी चाहिए? सो आवर की नॉलेज एरियाज आर हेल्थ केयर लॉज एंड रेगुलेशंस. जब हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हैं तो हमें हेल्थ केयर लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए. उस स्टेट का लॉ, उस कंट्री का लॉ. जैसे हमारे कंट्री में है कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिटेड है हमारे कंट्री में, है ना. हमारे कंट्री में वी कैन नॉट डू सेक्स डिटर्मिनेशन. देन आफ्टर सर्टेन वीक्स वी कैन नॉट डू एबॉर्शन. ये सारे हमारे कंट्री के रूल्स हैं. ओके, सो वी हैव टू नो व्हाट आर आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस. कौन सी वैक्सीन हमारे कंट्री में मैंडेटरी है, विच वैक्सीन्स आर प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री. अगर आप बाहर जा रहे हो तो कौन से कंट्री में जा रहे हो और आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है. सो वी बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर वी हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स. ओके, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया बना लिया, हमने डॉक्टर्स भी बहुत हाई सैलरी में ले लिए, लेकिन हम जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उसके डायरेक्टर को या उसके ओनर को हम कुछ पैसा कमा के नहीं दे रहे, देन इट इज ऑफ नो यूज. ही विल नॉट रिक्रूट अस, ही विल जस्ट हमें निकाल दिया जाएगा जॉब से. इजंट इट? सो फॉर मेंटेनिंग इट फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीखना है, नॉट ओनली to save our job but to know about how much profit and loss we have made for the hospital, and if we get fund from somewhere, how to manage that fund. अगर हमें आज 10 करोड़ रुपए दिया जाता है तो कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर हम ज्यादा फंड लगाकर हॉस्पिटल के लिए और कमाई कर सकते हैं, या कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है which will be needed in future, जो आगे फ्यूचर में जाके और ज्यादा इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें. तो ऐसी डिपार्टमेंट में हम फंड लगाएं. तो हमें फंड मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए. देन डेटा एनालिटिक्स,
एंड इन्फॉर्मेटिक्स. डेटा एनालिटिक्स इज वेरी हॉट टॉपिक दिस डेज. हमारा जो डेटा है वो कोई चुरा नहीं ले. डेटा सिक्योरिटी, जो डेटा है उसी के बेसिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे हम पता, वी कैन नो हाउ आवर patient is progressing. And epidemiology, you must have, some of you must have heard about this subject. epidemiology में जो diseases के बारे में पढ़ा जाता है, हम पढ़ते हैं, उसमें हम प्रिवेंशन के लेवल्स तभी ला पाते हैं जब हमारे पास डेटा होता है. जब हमारे पास डेटा नहीं होएगा तो हम आगे का फ्यूचर प्लान नहीं बना सकते. सो वी नीड टू हैव डेटा ऑफ आवर पेशेंट्स, आवर स्टाफ, एवरीवन. एंड चेंज मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हमें मैनेजमेंट को चेंज करना और कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है ये भी आना चाहिए. सो नेक्स्ट प्लीज. सो these were the scope as per all of you are concerned. हम लोग सब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं. तो ये हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ स्कोप है तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे. सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है बैलेंसिंग कॉस्ट एंड केयर सर्विस लेवल्स, कि हम जो बढ़ती हुई महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कॉस्ट बढ़ रही है, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में कॉस्ट बढ़ रही है, इवन फॉर स्टाफिंग, स्टाफ को रिक्रूट करने में, नर्सेज रिक्रूट करने में, डॉक्टर्स रिक्रूट करने में हमारा जो खर्चा आ रहा है उसको हम बैलेंस करना है केयर सर्विस लेवल्स के साथ. हमें बैलेंस करके चलना है. अगर बैलेंस नहीं होएगा तो हॉस्पिटल ज्यादा दिन तक रन ही नहीं कर सकता. देन मैनेजिंग इवॉल्विंग रेगुलेशंस एंड रिफॉर्म्स, ये भी मैनेज करना है. दिन हर रोज जो नए नए रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं उसको हमें कैसे मैनेज करना है. कोऑर्डिनेशन अक्रॉस मल्टीपल स्टेक होल्डर ग्रुप्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हॉस्पिटल के, उनको उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है. अभी आपने देखा होगा, हम अगर आप सब देहरादून से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हॉस्पिटल्स कैसे मर्ज हो रहे हैं. CMI जो है वो दून हॉस्पिटल में चला गया, वेलमेट हॉस्पिटल है ग्राफिका में चला गया. सो दे हैव मर्ज्ड. सो अगर मर्ज होते हैं तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का हो, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाला हो, या हॉस्पिटल का ओनर ही क्यों ना हो. उसके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है. हम सिर्फ एक को प्लीज नहीं कर सकते, हम सिर्फ ओनर को प्लीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जिससे सामान लेना है he should be also pleased, otherwise he is not going to provide us things. So we have to coordinate among multiple stakeholder groups also. Then nursing clinicians shortage and retention. आपको पता है कि बाहर के कंट्रीज में डिमांड इंडियन डॉक्टर्स की एंड नर्सेस की बहुत ज्यादा बढ़ गई है. उसकी वजह से वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस. So our equation of doctors, nurses with patients is very, very less. So हम उन्हें कैसे रिटेन करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. कि हम इतनी सैलरी भी नहीं दे सकते, लेकिन हमें रिक्रूटमेंट भी देनी है एंड रिटेन करके भी रखना है, कि जितने भी नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं वहां पर ना चले जाए. नया हॉस्पिटल खुल जाता है तो नए जगह फिर से चले जाता है. हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि एक हॉस्पिटल नया खुल गया, उसने दूसरे हॉस्पिटल को बुला लिया और फिर वो सारे हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस वहां पर चले जाते हैं. देन करंट अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट प्लीज. करंट अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे लिए. हम सब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने जा रहे हैं या बन गए, तो हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए. स्कोप भी देख लिया हमने, चैलेंजेस भी देख लिया, लेकिन आगे क्या है, आगे क्या करना है हमें. सो सबसे पहले we have seen कि कोविड के बाद से टेली हेल्थ एंड डिजिटल केयर मैनेजमेंट बहुत आगे आ गया है. टेली हेल्थ मीन्स डिस्टेंस हेल्थ केयर, जो हम दूर से ही, आज आप प्रैक्टो के बारे में सुना होगा आपने, कि हम फोन कॉल पे ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. फोन किया हमने और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं. डिजिटल केयर मैनेजमेंट, पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर हमारे यहाँ पर कोई भी बाहर का पेशेंट, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर्स अच्छे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं और कम पैसे में, लो कॉस्ट में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सर्जरीज दे सकते हैं, तो बाहर की कंट्री के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे यहाँ आके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं. तो पहले क्या होता था,
उन्हें आने का पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए आते थे, फिर डॉक्टर से बताकर कि किस दिन उनका सारे डायग्नोसिस कराने आ रहे हैं, उसके बाद जब सर्जरी की डेट दी जाती थी तो फिर से आते थे वो. नाउ बिकॉज ऑफ डिजिटल केयर मैनेजमेंट दे डोंट हैव टू कम अगेन एंड अगेन टू द hospital, or they even in India they don't have to go. If from Dehradun I have to go to PGI Chandigarh, I don't have to go there. I can just call the doctor over telehealth or telemedicine or digital healthcare management. I can call over doctor. I can send all my diagnosis, all my investigations to the doctor, and he can give me a date for my surgery. So it has become so easy for us because of healthcare management, because of हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो यहाँ पर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी और इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ टेली हेल्थ एंड डिजिटल केयर मैनेजमेंट. देन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑटोमेशन. हम देखते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन अब बहुत बढ़ गया है कि कौन सा हॉस्पिटल अब आगे आ गया, ब्रांड बनता जा रहा है. जो हॉस्पिटल को आप आगे हमें अपनी ऑप्टिमम सर्विसेज देनी है. एक होड़ लग गई है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कि कौन आगे बढ़ सकता है. हर एवरी half a kilometer, not even not half a kilometer, आप एक हॉस्पिटल देख सकते हो. सो हमें ऑप्टिमम हेल्थ केयर देनी है विथ ऑटो, और सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है. तो वहां पर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बड़ा रोल हो गया. सो वी हैव क्रिएटेड इन फ्यूचर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स का और ज्यादा स्कोप बढ़ गया, अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गई है. डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स. डाइवर्सिटी हो गई है हमारे यहाँ. हम सब कुछ एक साथ कराना चाहते हैं. जैसे अगर कोई घूमने आ रहा है, सपोज मुझे चंडीगढ़ घूमने जाना है या मुझे दिल्ली घूमने जाना है, मैं ये सोच के जाऊंगी कि मैं जा रही हूँ तो डॉक्टर को भी दिखा के आ जाता है. यूएस से कोई आ रहा है, इंडिया आ रहा है, डॉक्टर को भी दिखाते हुए आएंगे. So it has now become a global matter. वहां पर जब ग्लोबल मैटर हो जाता है तो उसको मैनेज कौन करेगा? हम मैनेज करेंगे एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स. मर्जर्स, एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन. अब मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू किस तरह से हॉस्पिटल मर्ज हो रहे हैं. मर्ज क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स. तो जहां पर मर्जिंग हो रही है हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है. जहां एक्विजिशंस हो रहे हैं, एक हॉस्पिटल दूसरे को एक्वायर कर ले रहा है, तो वहां हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की डिमांड और बढ़ती जा रही है. जब मर्जिंग होगी या एक्विजिशंस होएगी, कोई उसको ले लेगा हॉस्पिटल को, तो मैनेज कैसे होगा? ऐसे ही थोड़ी कि एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल के साथ आके मिल जाएगा. स्टाफ चलो एक हॉस्पिटल से दूसरे